Good morning, students. Hi, today I Payal Parik. In Payal's Easy Commerce, we are starting a very important topic from the point of view of exam, and that is known as circular model. Okay, model matlab people are looking at this and they are applying that to get results. तो पहला ये समझते कि circular model क्या होता है. So the circular model of service quality, popularly known as the GAPS model, okay, was developed by a group of American authors. So A. Parasumaran, okay, Raman, or Leonard Berry in a systematic research between 1983 and 1988. तो ये जो है ना सर्क्यूल इंस्ट्रूमेंट है, it's like a questionnaire, okay, to measure potential service quality problems and the model of the service quality to help diagnose possible causes of the problem. The model of service quality is built on the expectancy confirmation paradigm. That means what? That means मैं कंज्यूमर हूं, मेरा सोच है अरे मुझे इधर जाना है और ऐसा ऐसा सर्विस मिलना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये मेरा अभी सोच है. फिर मैं वहां पे गई और मुझे वैसा ही सर्विस मिला जैसे मैंने सोचा था. सो दैट इज नोन एज एक्सपेक्टेंसी एंड कंफर्मेशन. मैंने जैसा सोचा था वो एक्सपेक्टेंसी है और मुझे जो मिला वो कंफर्मेशन है. So this is a very nice imagination as well as application of an expectancy confirmation model. So SQ is equal to P hyphen E. SQ क्या है? Service quality. P is what? The individual's perceptions of service delivery. E is the individual's expectations of a given delivery. So when अभी इसमें ये इक्वेशन से मुझे फायदा क्या है? SQ is equal to P hyphen E. मुझे फायदा ये है कि when customer expectations are greater than their perceptions of received delivery, service quality is deemed low. then नहीं, अच्छा सर्विस नहीं था. And perceptions exceed expectations. मैंने सोचा था हाँ ऐसा ऐसा रहेगा, मैं ज्यादा अच्छा लेके नहीं जा रही हूँ, लेकिन जब मैं वहां पे गई ना तब इतना अच्छा था कि मतलब मुझे लगा मैं स्वर्ग में ही हूँ. इतना अच्छा मुझे फीलिंग आया. लाइक आई फील कि मैंने ऐसे देखा ही नहीं कुछ चीज. सो अभी ये कैसे चलता है, इसका स्ट्रेटेजी क्या है ये देखते हैं. तो पहला है ना, इसमें क्वेश्चनर होता है. क्वेश्चनर मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं और the questionnaire consists of matched pairs of items. मतलब मैचिंग होता है 22 expectation items and 22 perception items. Okay, organized into 5 dimensions. ये 5 dimensions क्या है? ये reliability. Okay, reliability को 5 items होता है, मतलब वो क्वेश्चनर में. अश्योरेंस के 4 आइटम्स रहेंगे. क्वेश्चंस रिलायबिलिटी के ऊपर 5 रहेंगे, अश्योरेंस के ऊपर 4 रहेंगे, टैंजिबल्स के ऊपर 4 रहेंगे, एम्पैथी के ऊपर 5 रहेंगे और रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर 4 रहेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये रिलायबिलिटी से जो ये ले रहा है उसको क्या फायदा है? जो डेफिनेशन क्या होना चाहिए रिलायबिलिटी का? The ability to perform the promised service dependably and accurately. Are you understanding? उसके बाद assurance का क्या होएगा? The knowledge and courtesy of employees and the ability to convey trust and confidence. Tangibles, आपको ये कैसा लगा, ये जगह कैसे लगी? Physical facilities, equipments, personnel, communication, materials. Empathy, that means the provision of caring. कुछ हो गया और it was a bad day, लेकिन the staff really took care of us. bad day किसी की भी जिंदगी में आ सकता है. It's not like उसमें कुछ ऐसा ये तारीख और ऐसे कुछ और ये ऐसे ग्रह नहीं रहते, वो हो जाता है. Responsiveness, the willingness to help customers and to provide prompt service.
So that comes under responsiveness. तो ये जो सब डायमेंशन है, ये सब जो आइटम्स है, ये क्या होता है? ये जो क्वेश्चन है, एक एग्जांपल लेते, एक होटल में मैं गई, ओके, मैंने खाना खाया ये, और फिर मैंने ना एक क्वेश्चनर भरा 10 क्वेश्चंस का. Are you understanding? So they require a moderate to large sample for statistical reliability. मतलब at least in that month कितने customers आते हैं, वो सबके पास वो फॉर्म भराएंगे. Also they will ask you कि आप कहाँ रहते हो. अगर आपने दूसरे होटल्स इसके एक्सपीरियंस किए या नहीं किए. Are you understanding? कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसे ईमेल पे ना गूगल फॉर्म्स आते हैं, जैसे आप लोग कॉलेज में भरते हो, और उसमें भी आपको बोलते हैं प्लीज स्पेयर 5 minutes और 10 minutes और एटलीस्ट 15 minutes and you fill in the questionnaire. The length of the questionnaire combined with sample size requirements contributes to substantial cost in administration and data analysis. तो ये जो पूरा जो मॉडल है, ये डेटा एनालिसिस करता है कि जिस तरह से मेरा ब्रांडिंग है, जिस तरह से मेरे है, क्या लोगों को वो वर्थ इट लग रहा है या ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है या क्या लग रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, अभी तक ये अपन ने क्या किया कि आइडियल क्वेश्चनर के लिए जो लोगों को सोच है और जो लोगों का एक्सपीरियंस है सोच के बाद, क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं, या मैच करेगा कि नहीं, ये आइटम्स के ऊपर निर्भर है. ओके, लेकिन ये एक तरीका था इसको मेजर करने का. लेकिन देयर आर पीपल जिन्होंने इसमें सब गैप्स दिखाए हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये गैप्स क्या है? लोगों को लगा है कि जैसा उसका ब्रांडिंग था वो नहीं हो पाया है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक हमारे टाउन में ना, मतलब वेयर आई स्टे, देयर इज अ वेरी फेमस रेस्टोरेंट नोन एज क्रीम सेंटर. मतलब उसका है ना, सैटरडे संडे तो तौबा तौबा, मतलब इट्स लाइक पीपल वेट फॉर 1.5 hour इन द लाइन. ऐसा उसका मतलब चलता है. फ्राइडे सैटरडे संडे, घनी बार तो वो हैप्पी आवर्स वीकडेज को भी देता है. तो द फूड, ओके, सो द थिंग इज दैट अगर वो 400 रुपीज एक डिश का चार्ज कर रहा है, तो वो 400 रुपीज वर्थ इट है या नहीं है, ये मुझे कैसा पता चलेगा? कस्टमर का फीडबैक से. सो कस्टमर का फीडबैक के लिए उसको एक क्वेश्चनर भरना पड़ेगा, राइट? सो बिकॉज ऑफ द क्वेश्चनर आई गेट टू नो दैट यस इट वॉज वर्थ इट. अगर नो इट वॉज नॉट वर्थ इट, तो उसके लिए ये 6 गैप आता है. ये 6 गैप कौन से है, सीखते हैं ये डायग्राम से. पहला गैप है, मतलब ये क्या है, ये गैप मॉडल में क्या है, पहला ये देखते हैं. क्या 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 एलिमेंट्स आपको ड्रॉ करने हैं. पहला है वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, पर्सनल नीड्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस. अभी वो बोल रहे कि मैक्सिकन रेस्टोरेंट है, ठीक है, आपको भी आज मैक्सिकन खाने का मन है, इसके लिए आपको वो आप गए हो और वो एक्सपेक्टेड सर्विस है. आप जब गए, आपको बहुत अच्छा लगा, तो दैट इज देन देयर इज नो नॉलेज गैप. ओके, अभी मेरी फ्रेंड ने बोला है अच्छा रेस्टोरेंट है, और आपको लगा वो चाइनीज रेस्टोरेंट है, और आपने अभी तक कुछ सर्वे नहीं किया है. जब मैं वहां के गई, मुझे पता चला अरे बाबा ये तो मैक्सिकन है, मुझे तो चाइनीज खाने का था. तो देयर इज अ नॉलेज गैप. The knowledge gap is what you had thought. Are you understanding? And what you got, it is different. मतलब आपको वो पता नहीं था, या आपने ऐसे पिया था, या फॉर एग्जाम्पल दिस कुड बी इवन दैट यू बॉट अ वॉशिंग मशीन, और आपको बोला था कि 1 year वारंटी में ये मतलब इंक्लूडेड है, लेकिन कौन सी पार्ट्स इंक्लूडेड है वो आपको नहीं पता था. आपने पूछा नहीं, दुकानदार ने बताया नहीं, और वही साल में मशीन बिगड़ा, और आपको बोला गया नहीं, यू हैव टू पे 3000 फॉर द सर्विस, बिकॉज इसमें 2 पार्ट्स इंक्लूडेड है, 2 पार्ट्स इंक्लूडेड नहीं है. तो उसको बोलते हैं नॉलेज गैप. दैट इज द फर्स्ट गैप. सेकेंड वन आई हैव इज द पॉलिसी गैप. सो इट इज डिफरेंट बिटवीन, ये है, मैं इधर हूं, ये क्या है, एक्सपेक्टेड सर्विस और
the management perceptions of consumer expectations. So the quality standards established for service delivery. Christopher Lovelock, they call it policy gap between the top management. They made a policy decision not to deliver what they think customers expect, maybe because of the cost factor. So management perceptions of consumer expectations. Are you understanding? So there is like a policy gap. That means फॉर एग्जाम्पल ये है, इसको एक अभी फॉर एग्जाम्पल रिटर्न पॉलिसी है कि यू हैव टू रिटर्न विद इन 15 days. अभी मैंने वो चीज लिया, मुझे रिटर्न करना था, लेकिन मैं ना दिल्ली चली गई वो दिन और 15 दिन मेरे हो गए. व्हेन आई केम बैक दोस पीपल सेड सॉरी वी हैव अ 15-day पॉलिसी. तो आपको इतना गुस्सा आएगा, शिट यू नो दैट ये अभी मुझे साइज नहीं हो रहा है, कौन पहनेगा, ये रिटर्न नहीं ले रहा है. सो दिस इज नोन एज द पॉलिसी गैप. Now this policy can be for hundreds of things. Are you understanding? ये goods exchange का policy, debtors के लिए policy, there could be so many things जब वो policy आप आपके मतलब वो आप सोच सकते हो. The gap 3 is translations of perceptions into service quality specifications. Okay. So this is the delivery gap. Now I'll give you an example like this. मतलब मैंने उनको बोला था कि that do like this, I want a cake, and वो केक के मुझे ऐसे, मैंने उनको एक सेम पिक्चर देखा था, and I had told one flavor to them. मतलब मैंने एक कैसे चॉकलेट बोलते हैं, तो मैंने एक फेरेरो रोस्टर करके this thing was there, कि मैंने this thing, और मैंने बोला था शार्प 4 बजे मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे चाहिए, बिकॉज 4:30 इज द केक कटिंग. अभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ एंड द केक केम एट 6 o'clock. सो दिस इज अ डिलीवरी गैप. when was the cake going to come? At 4 o'clock. डिलीवरी हुआ लेकिन 6 बजे हुआ. बट आई मीन माई बर्थडे पार्टी इज फिनिश एंड मैं एकदम बॉयल, वो क्या बोलते हैं, ऐसे मेरा खून खोल रहा है, बिकॉज इट्स लाइक आई वॉज गोइंग टू गेट इट. सो व्हाट वाज द प्री कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट वाज द पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट. अभी मैंने मास्क का ऑर्डर दिया, मेरे पास एक भी नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स टेक इन द मंथ ऑफ अप्रैल व्हेन दिस कोविड थिंग वाज देयर. Now you are charging this price. People, the mask was sold for 30, 40, 50. Are you understanding? So then you expect the delivery. Are you understanding? तो जो standards थे और जो actual service performance है, is it going to be matching or not? So that is the service delivery, pre and post contract. Are you understanding? उसके बाद I have is the communication gap. Now when I'm talking about this communication gap, ये communication gap क्या होता है? The fourth one, I'm out here. When I'm talking about the communication gap, external communication. मतलब this is, see, अभी advertising और sales personnel, okay, उनके product performance features थोड़ा वो ऊपर नीचे उन लोग ने करके वो बेचा है या advertise कर रहे हैं. अभी the over promise gap which can be caused by advertising and the sales personnel, that means that is the communication gap. मतलब मैंने ऐसा बोला था, ओ इससे तो मेरे teeth white हो जाएंगे, maybe थोड़ा difference आया है, but once you stop using the product you will not get that thing. तो मैंने सोचा था ना एक बार हो जाएगा, फिर मैं ये प्रोडक्ट बंद कर दूंगी यूज करने के लिए, लेकिन फिर वापस मेरे येलो हो गए टीथ. मतलब मैंने जो सोचा था थोड़े दिनों के बाद वो वैसा नहीं हुआ. सो दैट इज नोन एज द परसेप्शन गैप. आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसके बाद द लास्ट थिंग आई हैव इज द सर्विस क्वालिटी गैप. सो what customers expect to receive and their perception of the service that is actually delivered. So मतलब for example अभी मैंने सोचा था कि मुझे थोड़ा गरम खाना मिलेगा, या they had written that नहीं गरम नहीं हो पॉसिबल, आप घर पे हीट कर लो,
या मुझे ऐसा बोला था कि इसके साथ में एक दो चीज फ्री दूंगा, या ऐसे कॉम्बो मील है और वो कॉम्बो चीज आया ही नहीं. So all of that is like the service quality gap. I hope students this topic has now become relatively simple, and it is an important topic. Thank you, students.